اب ایک شخص کہے انما الاعمال بالنیات، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے قدر ہے انما الاعمال بالنیات، لام پر پیش ہے، وہ لام پہ زبر پڑتا ہے، تو اس کا معنی یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف ایک جھوٹ کو اور غلط کو منسوخ کریں. وہ دعوت دیتے ہیں طلبا کو کہ ان میں نحو کی ان سرف سے محنت کرو تاکہ کوئی ارادی غلطی نہ کر سکے. ارادی غلطی بھی در حقیقت نبی اسلام کی طرف قسم اور جھوٹ کو منسوخ کرنے کے مسائل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں کیا کام ہو رہا ہے، زکاتیں جمع ہوتی ہے، طلبا پہ خرچ ہوتی ہے، 9 سال 8 سال طلبا پڑھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، مسجد سنبھال لیتے ہیں. یہ احساس ہے کہتے ہیں جتنی بڑی سوچ ہے بڑی گھٹیا سوچ ہے. بتاؤ زکاتیں کون جمع نہیں کرتا؟ آج تو بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ لوگ جمع کر رہے. عمران خان زکات جمع نہیں کرتا. کراچی میں ڈاکٹر عظیم رضوی ایک باہر انداز زکات جمع نہیں کرتا. ایک گویا باور حق زکات جمع نہیں کرتا. یہ ساری تنظیمیں کھانے چندے زکاتیں صدقے کتنے خرچ کرتے صرف بتائیں تو یہ پسند کی. اور مجھے یہ بتاؤ کہ فارغ ہو کر ایک نسل کو سنبھال لیں اس میں کون سا عیب ہے؟ یہ تو امام الانبیاء کا بل ہے. نبی اسلام کی پوری تحریک کے محنت مسجد نبوی آپ کو بڑا کام کیا تھا، مسجد اجتماع کرانا، صحابہ کو درس دینا، ان کی تربیت کرنا. ایک عالم بل ایک مسجد کو سنبھال لے، دنیا کاروبار کر لے اور یہ مسجد کو سنبھال لیتا ہے، منبروں کے نام کو سنبھال لیتا ہے، جماعتیں کراتا ہے، لوگوں کی تربیت کرتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، حدیث کا درس دیتا ہے. تو یہ تو حقیقت اللہ کے پیغمبر کا مدد، یہ کوئی معمولی چیز ہے. اس عمل کی تحقیر اللہ کے پیغمبر کی تحقیر، اس عمل کی توحید اللہ کے پیغمبر کی توحید. تو لوگوں کیوں علماء کا سلسلہ احترام اور تعلیم کے متقابل. اور یہ بات بالکل اچھے طریقے سے نوٹ کر لو کہ ایک عام شخص کی قیمت کے نمینہ برائی کبھی نہ بڑا گنا بڑا اس کا مفاد. نبی اسلام 2 قبروں پر گزرے، فرمایا کہ دونوں میں عذاب ہو. ایک عذاب اس لیے کہ وہ استنجا میں احتیاط نہیں کرتا، اور دوسرے کا عذاب اس لیے کہ وہ چوری ہے. یہ عام شخص کی قیمت کا مفاد چوری کرتا تھا. اللہ نے عذاب قبر میں پکڑ دی، چگل ہوتا اللہ نے قبر میں پکڑ دی اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے اور اس کی قبر جہنم کا کڑا بن چکی. 99 سال اس پر چھوڑ دیا گیا جس کو 10 رہے جنم ہے. ان کے شہر کا ٹکڑا اگر زمین پہ سجا دیا جائے تو زمین کی ساری رئیس کڑی اور زہریلی ہو، اور آئندہ کے لیے وہ زمین کبھی کوئی فصل اگانے کے قابل نہ رہے. اللہ نے قبر میں پکڑ لیا، کیوں؟ یہ تو عام شخص کی قیمت کا مقام، جبکہ ایک عالم کی قیمت کا مقام بھی ہے الہام بھی. کیونکہ عالم کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کا داعی، اور اللہ فرماتا ہے تم احسن قولا ممن دعا الی اللہ کہ جو اللہ کے دین کا داعی ہے اس سے بہتر انسان کوئی ہو ہی نہیں. وہ سب سے بہتر، سب سے منفرد اور سب سے متمیز اس سے بہتر کو ہو ہی نہیں. دعوت کے مقابلے میں عمل جہاد ہے، اور جہاد کا عمل یقیناً مبارک ہے، لیکن دعوت کا کام جہاد کے کام سے افضل. اللہ نے کتاب کی صحت کو، جہاد کی صحت کو جہاد کہا ہے، لیکن دعوت کو جہاد کبیر کہا ہے. مجاہدون بھی جہاد کبیر ہے. اس قرآن کے ساتھ، میری وحی کے ساتھ مجھے یقین ہے جہاد کرو جہاد کبیر. یہ دعوت جہاد کبیر ہے، اور کتاب کی صحت یہ عام جہاد ہے. جہاد باللسان جو ہے یہ علم کا جہاد، اور اللہ کی وحی کے لیے جہاد کرنا، دعوت سے جہاد کرنا، یہ کتاب سے افضل ہے، کتاب سے اعلیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تلوار استعمال کرو گے تو اس تلوار سے کیا ہوگا
कुफार की मौत होगी, कुफार कत्ल होंगे, मुजरिमीन कत्ल होंगे, मुब्तदीन कत्ल होंगे। तो काफिर का कत्ल बेएतबार इंसान की नहीं, बेएतबार कुफर के। मुजरिमीन का कत्ल बेएतबार इंसान के नहीं, बेएतबार उसके मुशरिक होने के। काफिर के कत्ल के जवाब कुफर और मुशरिक के कत्ल के जवाब शिर्क है। और दाई का किरदार क्या है? दाई के किरदार से कुफर और शिर्क खत्म होते हैं। वो किरदार खत्म। देखिए एक मुजाहिद तलवार इस्तेमाल करता है, यकीनन बड़ा अजीम का, और एक दाई अपनी जुबान इस्तेमाल करता है और यकीनन बड़ा अजीम का। मुजाहिद की कामयाबी अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है और दाई की कामयाबी भी अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है। एक मुजाहिद तब कामयाब होगा उसको अल्लाह की तौफीक मिलेगी, और एक दाई तब कामयाब होगा कि उसको अल्लाह की तौफीक मिलेगी। चुनांचे एक मुजाहिद को अल्लाह की तौफीक मिल गई, उसकी तलवार से कुफार कत्ल होंगे, उसको सजा मिलेगी। और एक दाई को अगर अल्लाह की तौफीक मिल गई तो उसकी दावत से कुफार नहीं बल्कि कुफर खत्म होगा। कौन सा बड़ा काम? ये काफिर का कत्ल होना या कुफर का कत्ल होना? काफिर की मौत अहम है या कुफर की मौत अहम है? काफिर की मौत क्यों? कुफर की बिना। तो असल चीज तो कुफर और दाई का अमल इस कुफर के खिलाफ है। इसलिए पैगंबर इस्लाम का फरमान है, इस्लाम रजुल वाहिद खैरुन ली मिन क़त्ल अल्फ काफिर। मेरी दावत से एक शख्स इस्लाम कबूल कर ले कि मेरे लिए बेहतर है इस चीज से कि मेरी तलवार से 1000 काफिर कत्ल हो। मैं तलवार इस्तेमाल करूं और 1000 कुफार को कत्ल कर दूं, इससे बेहतर है कि मेरी दावत से, मेरी जुबान से सिर्फ एक काफिर इस्लाम कबूल करे। इसलिए प्यारे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूरी उम्र जिहाद पे अमल किया, लेकिन आपकी तलवार से सिर्फ एक काफिर कत्ल हो, सिर्फ एक काफिर। अगर कत्ल की सिर्फ दावत के अमल से अफसल होता तो इस शरीयत के अब बड़े मुस्तहिक मोहम्मद रसूलुल्लाह होते। अल्लाह ने आज की दावत में तासीर की, और ये काम मुश्किल है, ये काम जिहाद कबीर है। तो आप तकामुल करके देखें, नबी इस्लाम की जंगों में सबसे कठिन और मुश्किल जंगें होती, 70 सहाबा शहीद हुए, जख्म सबको लगे। खुद इमामुल अंबिया आपके दान शहीद हुए, चेहरा जख्मी हुआ और आपके सर में खौफ की कड़ियां घुस गई, बड़ा गया खून बंद नहीं हुआ। आप निगार होकर खाई में गिर गए, एक आर्मी कस्बाई मैदान से हो गई। बड़ा कठिन मरहला था, बड़ा सख्त दिन था। उम्र में आशा देता है, अल्लाह के नबी सवाल की हर बर्र अली की यौम अशद में ओहद, क्या ओहद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपने देखा? ओहद में इतना नुकसान, 70 सहाबा का खून बहा और वो यही नहीं है, जख्म सबको लगी। इससे सख्त दिन आपने देखा आपकी पूरी जिंदगी? फरमाया कि हाँ ऐसा, इससे सख्त दिन एक और था, और वो है पैर का दिन। ये जिहादी मैदान है और वो जागती मैदान। यहाँ 70 सहाबा शहीद और वहां सिर्फ क्या मकाम था? आप मक्का में मुशरिकीन मक्का को बता कर गए थे कि तुम लोग मेरे अपने हो, तुम्हें दावत दे रहा हूं और तुम कबूल नहीं कर रहे। अब देखो मैं दूसरों के पास जाता हूँ, उन्हें जाकर दावत देता हूँ, वो किस तरह कबूल करें? आप ताइफ चले गए, जाकर लोगों को दावत दी, कूल ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ताइफ ने क्या शुरू किए? आपको पत्थर मारे, आप जख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए, हत्ता के बेहोश होकर गिर। फिर होश आया, फिर दावत दी, फिर पत्थर मारे गए, फिर होश आया, फिर दावत दी, 2-3 बार ऐसा हुआ। ओहद के दिन के साथ क्यों? इसलिए अपने मक्का वापस जा रहा था बड़े बूढ़े कदमों के साथ, पहले मक्का को क्या आगे जवाब दूंगा, मेरे साथ को क्या सलूक करेंगे? एक दाई की जिंदगी में ये मकाम बड़ा कठिन, ये दावत का महान, कभी मुनाज़रे, कभी मुखालिफीन के सारे, कभी उनकी तकलीफें और मुख्तलिफ राहें, बड़ा ही सख्त मरहला। जिहाद बड़ा अजीब मकाम, लेकिन शहादत एक मौत है, और मोमिन की मौत इससे बेहतर कोई चीज नहीं, मोमिन की मौत से बेहतर कोई चीज नहीं।
रसूल अल्लाह का फरमान है, मन तबद्दल क़ज़ा फकअन्नमा ज़ुबिया ग़ैर ज़िक्र। जिस शख्स को अल्लाह मनसब क़ज़ा जो उलमा का मनसब काजी बना दे, वो शख्स यूं समझे कि वो रोज जमा हो रहा है कुछ छुरी के साथ, कुछ छुरी के साथ। तेज छुरी हो, एक बार चलेगी, गर्दन कट जाएगी और जान छूट जाएगी। लेकिन अगर छुरी कुंद हो, उसको फेरते जाओ, चलाते जाओ, ना वो फिरेगी, न गर्दन कटेगी, न जान छूटेगी, और रोज इस वजह से बार बार गुजरना पड़ेगा। ये काजी का, दाई का, एक आलिम का किरदार बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। तो जिंदगी के सारे तबकात मोहतरम है, एहतराम के काबिल है, तालीम के काबिल है। हर शख्स की अपनी जगह जुहूद है, कोशिश है, अपनी जगह अमल है, और सबका सब मोहतरम, सबका सब मोहतरम। हमें चाहिए कि हम ये तबका उलमा इनके मकाम को समझे, इनके एहतराम को समझे और इनकी ताज़ीम का हक बचा जाए। और अगर इनकी दीन होगी, नमीमा और चुंगी होगी, तो ये चीज उनकी जात को नुकसान नहीं देगी, उनके काम को नुकसान देगी। कि लोग जब सुनेंगे तो उनकी दावत मुतरफिर होगी। और आज की इस्लाम में सबसे खतरनाक काम तंफीर का काम। तंफीर क्या है कि लोगों के दिलों में उलमा के ताल्लुक से नफरत के बीज होना, नफरत के बीज होना। उलमा सऊदी अरब, आज इनके फतावे पढ़कर देखें कि आज सबसे खतरनाक काम इस दीन के ताल्लुक से तंफीर का काम, कि उलमा के ताल्लुक से लोगों के दिलों में नफरत के बीज। अमल के बाद आ जाए, गुरेज करो, और ये सबका हर लिहाज से एहतराम का और ताज़ीम का मतलब। हत्ता कि अगर एक आलिम का बनन चाहिए हो, उसमें कोई जाती अहम हो, जिसका ताल्लुक उसकी जात हो, उस पर पर्दा डालो। और उसका इफ्शा करोगे, उसकी तालीम करोगे, उसका इजहार करोगे, तो ये उसकी दावत और बनन को नुकसान देगा। लोग उससे मुतनफिर होंगे, और ये नफरत हकीकत में उसकी जात है, दीन से भी हो सकती है, लोग मुनहरिफ हो सकते हैं। तो इस मकाम को पहचानो और इसकी हदूद को पहचानो, और इन तमाम रसूल को सामने रखते हुए उलमा के मकाम की मारिफत हासिल करो और इनसे ताल्लुक करो, इनसे ताल्लुक कायम करो। इनसे आपको इल्म मिलेगा, अकीदा मिलेगा, मदद मिलेगी। जो लोग बगैर उलमा के इल्म हासिल करेंगे वो जाहिल रहते हैं, किताबों से इल्म नहीं मिलता। इल्म उलमा से मिलता, इल्म उलमा से। इमाम ज़ाहबी ने एक मिस्री आलिम को मैदान इक़्तिदार में ये कहकर तनकीद की है कि उसका तो कोई शेख ही नहीं है, कोई प्रचार की है, उसका कोई शेख नहीं है। और क़ुरान मौला का कौल है कि जो शख्स इल्म में दाखिल हो बगैर शेख के, वो बाहर निकलेगा बगैर किसी इल्म के, वो कोरा का कोरा और जाहिल का जाहिल रहेगा। सुफयान सौरी का कौल है कि एक आलिम अगर पहाड़ की चोटी पर बैठा हो, पहाड़ की चोटी पर, आपको पता है कि वहां आप चढ़ के जाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे खर्च होंगे, तो फिर भी वहां जाओ, चढ़ो पहाड़ पर, आलिम से मिलकर आओ और उससे दीन हासिल करो। ये दीन तुम्हारे बचाव के सबब है। ये फितरों का दौर है, और फितरों के दौर में तहफ़्फ़ुज़ उसको हासिल होगा जिसके पास इल्म उसे हासिल होगा जिसका उलमा से ताल्लुक है। ये ताल्लुक बड़ा बरगुज़ीदा। नबी इस्लाम को फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के घर में जाए सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए, किसी आलिम का दर्स है सुनने चला गया, वो कुछ सवाल के लिए चला गया, फरमाया कि वो मस्जिद से लौटेगा एक मुकम्मल हज का सवाब लेकर, एक मुकम्मल हज का सवाब। और तबानी में एक हदीस के लिहाज है, उसका मफहूम ये है कि एक शख्स को किसी शरई मसले में मुश्किल दरपेश है और वो फौरन अपने घर से निकले किसी आलिम के पास जाने के लिए, तो घर की चौखट कबूल करने से पहले अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। उलमा के साथ ताल्लुक बड़ा अजीम है, बरगुज़ीदा है। इस मकाम की हिफाजत करो और अपने दीन को, अकीदे को बचाओ। उलमा ये मदारिस तुम्हारे दीन, अकीदे और मनहज की हिफाजत के सबसे मजबूत और कड़ी किले हैं। अल्लाह ताला हमको इस मनहज की मारिफत अता फरमा दे और हमको इस मकाम की हिफाजत की तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला मोहतरम शेख को जज़ाए खैर